Good afternoon. Welcome to our show, The Great Talk. I'm Dr. Mohammad Rafiq Farouqi, Editor-in-Chief, CA Media Group. Today, we are going to have a conversation with one of the renowned advocate from Surat, city of Gujarat, Shaheen Hussain Saeed. I would like to welcome you, ma'am, in our program, and I am equally indebted to you for providing us opportunity to speak with us. To proceed, I would like to know your brief introduction. So Dr. Farouqi, right? My name is, as you mentioned, Shaheen Hussain Saeed, and I'm an advocate practicing since last 20 years in Surat District Court. Correct. Previously, I started with criminal practice, but then coming from a Muslim community, I was not so bold initially to practice in the criminal side, and then I started with civil side, consumer protection, and family court, like matrimonial cases. Right. So since 2002-3, I am practicing into family court. Specific area is matrimonial cases, Correct. marriage and divorce, and alimony cases. Correct. And till 2019, I was full-fledged practicing, but due to COVID, there was a little bit. So I switched over to revenue side now. Alright. The property dealings, and in Surat currently there are few projects of redevelopment of tenements. So I am now mainly into this redevelopment projects, which I do right from getting vacant this tenement to like right from जो भी documentation work है और tenant holders को सुनना, उनका queries सुननी, उनका कैसे खाली कराना, उनका transit देना, उनको accommodation देना, and then after 1 year, 2 years, the builder will reconstruct that, redevelop that. So again, we have to re-allot that. It's basically tenement holders जो होते हैं, वो marginal class of people होता है. Right. So we have to hear them. They have very low source of income. Correct. तो उनको उस तरीके से सब कुछ मैनेज करके देना. तो right now I'm mainly into this redevelopment projects. Great. So this is my professional journey, and now about my family background. Basically, my father is a retired assistant commissioner of police. Great. He retired in 2001 from Surat itself, and he was always a broad-minded, we can say liberal views. Correct. So he wanted me to practice into criminal side, and he wanted me to develop as a criminal lawyer. But then to its उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया, फिर ठीक है, it was my interest. Correct. So I switched over to other practicing. But he was very much keen to कि भाई मेरे बच्चे जो हैं, मेरी daughter especially, वो आगे बढ़े education level पे. Great. तो हम लोग 4 daughters हैं, I mean sisters हैं, and 1 brother है. So हम लोग जैसे हमारे community में तो आप जानते हैं, मुस्लिम community में education की बहुत ही problems होती थी, like before 20-25 years, but still उन्होंने हमको best education दिया है throughout English medium, and daughters को उन्होंने बहुत ही motivate किया. So we all are established professionally and we are economically independent here. Correct. In between बहुत सारा up down हुआ है financially, socially, जो हमको हमारे profession में, हमारे जो आगे बढ़ने में हमको बहुत ही तकलीफ पड़ी. Correct. Because being into the Muslim community, it's a conservative community somehow. कहा जाता था कि इतना पढ़ा के क्या करोगी, लड़कियां ही हैं, शादी कर देनी है उनकी तो. पर पापा ने कभी उसको बहुत अहमियत नहीं दी. For one thing I would say कि I am not still married. तो he never asked me कि why you don't want to get married, या मम्मी ने पूछा होगा, but he never asked me.
let her be independent, let her what it is to her. If she wants to get married, if she doesn't want to get married, it's up to her. She should be independent on her own, like she should be economically independent. Correct. This was the first thing he had into his mind. So बहुत सारा ऐसा अप डाउन आया. इनिशियली पापा को कहा गया कि ये बहुत बोल्ड फील्ड है, शाही नहीं कर पाएगी. तो पापा ने बोला ठीक है, मैं मतलब जो भी है मैं हूँ उसके पीछे. और अकेले में भी मुझे बोलते थे कि दुनिया कहती रहेगी बेटा, आगे आप बढ़ो, डू व्हाटएवर यू वांट. बस इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए. That's it. तो मेरे को जब इनिशियली स्टार्ट किया, इट वाज नॉट इजी. स्टार्ट किया तो क्रिमिनल में तो कोर्ट में तरह तरह के लोग आते थे. ऐसे हेजिटेशन भी था बिकॉज एकदम कंफर्टेबल माहौल घर का. एंड देन आफ्टर उसमें घुसना लाइक तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता था कि ये कहाँ आ गए. बिकॉज जो फिल्मों वाला कोर्ट होता है वो तो होता नहीं है यार. एंड एक एक्सपीरियंस हुआ दूसरे तीसरे दिन क्रिमिनल प्रैक्टिस में कि एक एक्यूज्ड आ रहा था, हैंडकफ था, पुलिस में सब सराउंड मतलब पुलिस की वो कस्टडी में. एंड ही विंक्ड एट मी, ऐसे करके आंख मारी मुझे. मैं उसको क्या, मेरा गुस्सा उस वक्त तो कैसे होता है व्हेन यू आर यंग, मैंने क्या यार ये कहाँ हूँ मैं, उसको क्या करूँ. बट फिर सोचा कि अब क्या कर सकते हैं. वो जब पुलिस कस्टडी में है, हैंडकफ्ड है, नाउ दिस इज माय प्रोफेशन, आई हैव टू डील विद ऑल दिस. सो ये शुरुआत ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट से हुई. एंड आई स्टार्टेड टू मैनेज कि नाउ बोल्डली जो भी हर दिन सोचती थी कि कहाँ आ गई हूँ मैं नहीं कर पाऊंगी हर दिन. बट पापा का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा एंड आई ग्रो मतलब करती रही. एंड फिर मेन जो मेरा इंटरेस्ट पैशन बना वो था मैट्रिमोनियल केसेस का. उसमें बहुत वास्ट एक्सपीरियंस मुझे मिला, जहाँ पे मुझे इनजस्टिस इनइक्वालिटी जो मेल फीमेल की है उस पर मैंने ज़्यादा मुझे जानने को मिला कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं ना किसी सब्जेक्ट के या किसी इश्यूज़ के, उनको पता चलता है कि इट इज़ लिटरली वुमेन्स वाज सफरिंग. ठीक है. एंड बीइंग इनटू मुस्लिम अगेन मुझे नंबर ऑफ केसेस जो मिलते थे मेजॉरिटी मुस्लिम बिल्कुल मार्जिनल क्लास का मिलता था. तो उनको सुनते पता चला कि उनका कोर इश्यू जो था वो एजुकेशन नहीं था, उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं था. तो फिर 2015 में आई कंप्लीटेड माय LLM, मास्टर्स कंप्लीट किया इन ह्यूमन राइट्स. और एक अंदर से आया कि यार प्रैक्टिस तो बहुत कर ली है, हेल्प भी करते हैं 1-to-1 जहाँ करने जैसी होती है, जो होते हैं उनको फ्री में भी कर देते हैं, कम फीस में भी काम कर देते हैं. पर कुछ सोशली मैं नहीं कर पा रही थी जो मुझे करना था. फिर आई जॉइंड नवसर्जन ट्रस्ट एंड सोशली कुछ जो भी मेरे से आज 1% 2% मैं नहीं कहती हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, बट जो भी मुझसे हेल्प मिलती है मैं विमेंस को, मुस्लिम विमेंस को मेरे सराउंडिंग्स में आते हैं इश्यूज लेकर, तो सबसे पहले तो एजुकेशन मैं करती हूँ, उनको काउंसिल जो भी मुझसे बनता है, उनको मेरी जो भी फाइनेंशियल हेल्प मैं कर पाती हूँ वो करती हूँ. उनको वेज मीन्स लॉज गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी कानूनी सहाय है जो वो मैं करती हूँ, उनको देती हूँ. और उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है उसको मैं ट्राई करती हूँ कि अभी जैसे आप देख लो, चलो एक सिंगल डॉटर हो तो कर ही लेती है, पेरेंट्स कर देंगे, बट शादी के बाद जब डिवोर्स दे देते हैं तो जैसे ट्रिपल तलाक, कई केसेस मैंने देखे कि ट्रिपल तलाक थे, तो तुरंत ही वो लड़की को उसके घर भेज दिया गया बच्चों के साथ. अब जो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कैसे करेगी आगे. तो ये तो बहुत बड़ा मसला था. तो मैंने ये धीरे धीरे ये भी जाना कि हमारे जो कम्युनिटी है उसमें एजुकेशन आप नहीं करा रहे हो, आप इकोनॉमिकली उनको काम करने नहीं दे रहे हो, तो व्हाट सोर्स ऑफ इनकम शी इज गोइंग टू हैव आफ्टर दिस ट्रिपल तलाक. और भी वन साइडेड, इट इज आर्बिट्री.
तो ये सारे इश्यूज बहुत हैं जो मुझे अंदर से थोड़ा सा लगता है कि उस पर वर्कआउट करने की बहुत ज़रूरत है। आई एम डूइंग इट, मेरे से जो भी बनता है मैं करती हूँ। So this is my personal, social and professional journey. I am very sure that it will be definitely a source of inspiration for all. Yes. At least definitely. for the women of India. Yes, yes. Right. To proceed, like you mentioned, how did you come into the field of your profession? Behind the curtain was your great father Yes. and a source of inspiration. Yes. So I would like to know the strategies. How do you formulate your plans and strategies in order to accomplish any particular activity, be it professional or social or personal? Okay. See, एक तो ये होता है कि हम जब शुरू करते हैं तो बिल्कुल नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं होता। बट मेरे फादर ने मुझे एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिया था कि बेटा हार्ड वर्क इज़ द मेन थिंग यू हैव टू डू, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको अगर ग्रो करना है, डेवलप करना है, नॉट जस्ट नॉमिनल लेवल पे, पर अगर कुछ भी करना है तो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं इन तीनों पर करती गई। मैं नहीं कह रही हूँ आज मैं परफेक्ट हूँ, शायद मुझे ऊंच नीच हुआ होगा, बट ये 3 चीज़ें मेरे में कंसिस्टेंटली रही है। और एक बार जब शुरू होता था, जैसे इनकम लेवल मेरा शुरू हुआ, तो आई गॉट कॉन्फिडेंस कि यार ये तो बहुत अच्छा है, आई कैन हेल्प माई सेल्फ, आई कैन हेल्प माई फैमिली, आई कैन हेल्प सराउंडिंग्स। तो ये मुझे मोटिवेट करता गया, बूस्ट करता गया। और मेरी सारी एल्डर सिस्टर्स हैं, तो वो तो खुद एक ओपन लिबरल माइंडेड थी, तो वो मुझे मोटिवेट करती गई वो भी कि चल करते हैं। बीच में डाउन्स भी हमारे आते हैं, गिव अप भी करते हैं, बट ये सारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा एजुकेशन, मुझे एक टिल्ट रहा है एजुकेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं फादर से ही इनहेरिट हुआ है। मदर फादर दोनों, मदर भी क्वाइट सपोर्टिव है मेरी, कभी भी डिनाई तो नहीं कर सकते हो उनको, नो डाउट वो कभी कभी कंजर्वेटिव हो जाती हैं, बट फॉर बेटरमेंट। बट फादर का जो सपोर्ट रहा, तो एजुकेशन मैंने टिल ग्रेजुएशन तो पापा ने पढ़ा दिया था, बट आफ्टर दैट मास्टर्स लेवल एंड नाउ आई एम डूइंग PhD फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटी। मेरा बेसिकली सब्जेक्ट भी मुस्लिम वुमन ही है, राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमन, तो उसमें फिर आगे बढ़ती गई। सो एजुकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टिल ग्रेजुएशन आपको करना ही करना है। एनी वुमेन ऑफ इंडिया अगर वो ग्रेजुएट होगी तो एक नॉमिनल लेवल का सोर्स ऑफ इनकम उसका खुद का तो एटलीस्ट कर पाएगी। तो मेरा ये हमेशा से स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहा है कि एजुकेशन होगा तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी और आगे फैमिली, बच्चे, हस्बैंड सपोर्ट जो भी करना है वो कर पाएगी। सो दिस इज माय बेसिक लाइक प्लानिंग है जो भी लाइफ का एक। मैडम, आपने एजुकेशन की बात करी जी, इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी पीड़ित महिलाएं आपके साथ मिल चुकी होगी या आज भी मिल रहे होंगे, जिनकी समस्या ऐसी है कि हम उनको कैसे एड्रेस करें, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। कभी कभार आपको ऐसा भी फील होता होगा कि क्लाइंट से मैं पैसे चार्ज करूं कि उसको पैसे दूं। जी, बहुत सारा ऐसा ही होता है। जी। तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस, एक एजुकेशन की बात है, तो उन पीड़ित महिलाओं के लिए जी क्या कोई ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम आप फ्यूचर में क्रिएट करना चाहते हैं जो उनको इकोनॉमिकली वाइब्रेंट बना सकता है? ऐसी कोई सोच रखते हैं आप? बिल्कुल रखती हूँ। उसको थोड़ा एलाबरेट करें। और उसी लिए मैंने नाउ सर्जन ट्रस्ट जो है, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर, ठीक है, ये जो मेरे बेसिक वर्च्यूज हैं वो ये है, ठीक है। तो मैंने एसोसिएट किया, देखिए ट्रस्ट और NGOs ये सब बहुत सारा है, ठीक है, बट ग्रास रूट लेवल से ही शुरू होता है हमेशा। तो मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि ग्रास रूट लेवल की जो औरतें हैं,
जो एजुकेशन पे खर्च नहीं कर पाती है उनकी फैमिली या आगे उनके वेलबींग पे नहीं खर्च कर पाती, तो ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए जहाँ औरतों को एजुकेशन भी मिले नॉमिनल उस पर और उसको उनको एक जॉब भी मिल जाए ताकि उनका कुछ हो। तो मेरा एक फ्यूचर में एक ये रहेगा, जैसे मेरी सिस्टर हैं वो यहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूशन खोला है, उनके अंडर में बहुत सारी फैकल्टीज़ काम करती हैं, तो इस बहाने से उनको जॉब मिल रही है। तो ऐसे भी छोटे छोटे भी अगर कुछ इंस्टीट्यूशन खड़े करें हम, ठीक है, और उनको जॉब्स दे फीमेल्स को स्पेसिफिकली, या कोई रिफ़र कर दें, अगर हमारा रेफरेंस है तो कहीं पे भी रिफ़र कर दें और उनको मोटिवेट करें। मोटिवेट जस्ट ऐसा नहीं चलो कर लो ये कर लो, 1-to-1 मीटिंग करके सेशंस करके उनको इतना मोटिवेट करें कि एटलीस्ट वो उनका खुद का और जो भी उनके डिपेंडेंट्स है उनका कर। तो उसके लिए एक ऐसा कुछ क्रिएट होना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको कि स्पेसिफिकली ये डिवोर्स जो हैं मुस्लिम्स डिवोर्सीज अभी हमारे घर पे ही जो काम करती हैं, रोज़ इश्यूज लेके आती है, आज मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, आज मेरे हस्बैंड ने वो ड्रिंकिंग में डाल दिया है, आज मेरे हस्बैंड ने उसमें डाल दिया, आज हमारा, तो ये तो रोज़ का है मेरे लिए। तो अगर उनके लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एड हो या जो भी वॉलंटरली कोई NGOs हो, अगर ऐसा कोई क्रिएट करें जिससे उनको छोटा काम करके इनकम मिल जाए बेसिक, तो ये अगर कुछ वर्कआउट होता है तो आई विल बी लव टू हैव बी अ पार्ट ऑफ दिस सच एन इंस्टीट्यूशन। तो उस पर कुछ मेरे थॉट्स हैं फ्यूचर में कि कुछ करूँ। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इस इंटरव्यू का एक सोल है, जो हमने इससे पहले भी बात करी, कि जो आपके सिद्धांत है, आपके प्रिंसिपल्स है, जो आपके पेरेंट्स ने या आपने खुद इम्बाइब किए होंगे, so I would like to talk about those principles so that it will eventually become a source of inspiration for all. जी देखिए बेसिकली अपब्रिंगिंग से हमको पेरेंट्स के थ्रू सब कुछ मिल तो जाता ही है, जैसे ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, बहुत सारा एक फैमिली केयर, लव, ये सारा तो हमको बचपन से सिखाया जाता है। इमोशंस स्पेसिफिकली एक मदर जो होती है वो इमोशन पार्ट्स ज़्यादा डालती है, फादर है वो प्रोफेशनली वो भी करेंगे, बट मदर जो है एक फीमेल का रोल ज़्यादा होता है इमोशंस क्रिएट करने में, एक केयर क्रिएट करने में, एक फैमिली का वेलबींग को देखने में। तो ये सारा तो आता ही है हम लोगों में, बट ओवर द इयर्स अगेन कहूँगी कि फादर से मैंने ऑनेस्टी, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उनकी जो ट्रांसपेरेंसी, उनकी फेयरनेस, उनको प्रेसिडेंशियल मेडल मिला था फॉर उनकी बहुत जो एक डकैती का बहुत बड़ा किया था, तो उनको प्रेसिडेंशियल, तो वो सब चीज़ें उनसे मैंने बहुत इनहेरिट की है, उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके। तो ये सारे वर्च्यूज़ जो हैं वो मैंने ओवर द इयर्स प्रोफेशनली और मेरे काम से सीखे, जो अगर हम रखेंगे, जैसे ये जो ह्यूमन राइट्स में मैंने सीखा कि इनइक्वालिटी, जैसे हम पर्टिकुलरली एक रिजिडनेस होती है हमें जो थी, तो वो प्रोफेशनली मेरे में से निकलती गई, ठीक है। मुझे किसी रिलीजन से हेट जो होता है वो नहीं है, मुझे किसी रिलीजन से इंडिस्क्रिमिनेट करने का मन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे हमको ज़रूरत है स्टैंड लेना है, राइट रॉन्ग उसका हम लेते हैं, बट जो इकोनॉमिकली एकदम जो है वो चाहे कोई भी कम्युनिटी, कास्ट या कुछ भी हो, उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, उनके लिए एक हमदर्दी रख कर उनके लिए करना, ये एक मैंने ओवर द इयर्स मेरे खुद में डेवलप हुआ है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी रिजर्वेशन, हमारे अंदर से सब कुछ निकाल के ह्यूमैनिटी बेस्ड जो है उसी पे काम करना है। तो ये मेरा एक रहेगा प्रिंसिपल लाइफ में कि कहीं पर भी अगर ऊंच नीच इनइक्वालिटी होगी, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे जेंडर की हो, या चाहे कास्ट
या लैंग्वेज या उसकी हो, तो मुझे थोड़ा सा उसमें भी मतलब मेरा एक रहा है कि वहाँ पे मैं इसको थोड़ा जो भी मुझसे बनेगा वो मैं कर सकूँ सोसाइटी के लिए। आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। जो करंट अभी भारत की सिचुएशन है, हम यकीन करते हैं कि जो भारत की संस्कृति जो है जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी जी, भारत का सीना इतना बड़ा है किसी को भी अपने छाती में समा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स द पावर ऑफ कंपोज्ड कल्चर। Yes, बिल्कुल। इस भारत की संस्कृति को बचाने के लिए आप एज एन इंडिपेंडेंट वुमन वेरी कॉन्फिडेंट चैलेंजिंग द चैलेंजेस इन द मार्केट, आप इंडिया को नेक्स्ट 5 years के बाद या मे बी आफ्टर अ डेकेड कहाँ पर विजुअलाइज कर रहे हैं? Where should India be after 5 years or after a decade? सी बेसिकली मैंने आपको बताया कि एक सेक्युलर हम जो बैकग्राउंड मेरा देखें तो हम फादर के साथ जब बड़े हुए हैं तो एक कॉस्मोकल्चर में रहे हुए हैं। हम पर्टिकुलर कोई पोलराइजेशन में नहीं रहे, कोई गेटोइज्म में नहीं रहे हैं। ये तो ओवर द इयर्स पॉलिटिकल जो भी इश्यूज हैं उसकी वजह से गुजरात में आया है लास्ट 20 years में जो पोलराइजेशन है। अदरवाइज मेरा पर्सनल ऐसा है कि मैं काम करूं वहाँ पे भी मिक्स कम्युनिटी होनी चाहिए, मैं जहाँ रहूं मेरे आसपास हर तरह के लोग होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एक बहुत ही इश्यू मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ। ये मेरा एक बहुत इनर इश्यू है कि मुझे कॉस्मोकल्चर में रहना है, मुझे मिक्स कम्युनिटी में रहना है, मुझे काम करना है मिक्स कम्युनिटी, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर मुस्लिम्स में काम नहीं करना, मुझे जैन्स में काम नहीं करना, मुझे हिंदूज में, मुझे कास्ट में काम नहीं करना है। तो आज मेजर इश्यू अपने यहाँ गुजरात में है वो एक पोलराइजेशन है। तो अगर उस पे काम कोई कर सकता है और उसको मिक्स बनाए तो आगे इंडिया, देखिए पहले क्या था, सारे जो मिक्स हम लोग याद है, हम बचपन में ईद में दिवाली में हम सारे सेलिब्रेशंस करते थे। अब ये मैं देख रही हूँ लास्ट 15-20 years से धीरे 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 कम होता जा रहा है। जो मिक्सिंग जो जेलिंग जो है वो एक डिवाइड वाला मुझे लग रहा है कि डिविजन आ रहा है धीरे 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 धीरे। तो अगेन उसी पे आप अगर देखिए 2 जन साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी कास्ट का है, आप साथ में काम करेंगे, एक ह्यूमन टच आएगा, एक दूसरे से हमदर्दी होगी। अगर आप अलग ही रखोगे उसको तो वो वापस कहाँ मिलेंगे, वो ह्यूमैनिटी कहाँ से आएगी? तो अगर जैसे पहले था माहौल के साथ में कहीं पर भी रहो, कहीं पे भी साथ में काम करो मिक्स, वो एक वापस से आ जाए तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाला इंडिया में भी। ठीक है, अपने कल्चर्स एक दूसरे के थोड़े से अपना लो, एक दूसरे के, हम नहीं कहते आपका फेथ छोड़ दो, आपका बिलीफ छोड़ दो, that is the constitutional right. Each and every citizen has to follow that religion. So उसमें नहीं करें, but at least थोड़ा सा कल्चर जो पहले होता था, during after अपना जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद we used to celebrate each and every festivals, हम लोग साथ में मिलके सेलिब्रेट करते थे, नेबर्स होते थे हिंदू मुस्लिम साथ में मिलके उत्तरायण दिवाली और सारा बनाते थे। तो ये अगर वापस से आ जाता है तो उससे फ्यूचर इंडिया में बहुत फर्क पड़ेगा। एंड आई विजन इंडिया कि अगर ये वापस से हो जाए तो माय कंट्री विल बी अगेन दैट, मतलब मुझे जो चाहिए ड्रीम इंडिया जो चाहिए। अच्छा, इसके रिलेटेड एक ये थॉट है कि ये तो आपने विजुअलाइज किया, जी जी तो इसके लिए हमारे जो प्रयास है, हमारे व्हाट शुड बी आवर एफर्ट्स टू विजुअलाइज दिस? देखिए, तो जैसे बताऊंगी पर्टिकुलर अभी अशांधारा आया है लॉ, एक जो लॉ है जो अगर कोई हिंदू मुस्लिम की या मुस्लिम हिंदू पर्टिकुलरली वो लॉ में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी अगर बेचता है या खरीदता है तो दे हैव टू टेक परमिशन ऑफ कलेक्टर। मतलब ये रेस्ट्रिक्शंस ही डाल दिए गए हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं लेगा, कोई मुस्लिम हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं लेगा। इससे आया है
नो डाउट उस पर जो फोर्सफुल है जो है वो तो रेस्ट्रिक्शन आप रखो, उसका मैं नहीं कह रही, बट इससे एक बहुत ज़्यादा डिवीजन मुझे नज़र आ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है उससे। तो अगर ऐसे लॉज जो डिवाइड ही कर रहे हैं तो उसमें लैक्यूनास ढूंढो, उस पर रिसर्च करो एंड उस पर अवेयरनेस करके ऐसे लॉज को अमेंड किया जाए। तो दिस, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर लॉ फिजिशियन हूं, तो आई कैन डू लॉफुली, जो लॉ पार्ट है उसी पे मैं कर पाऊँ। तो अभी मेरा जो रिसर्च एरिया है, आई हैव नॉट फिक्स्ड, मेरा टॉपिक 2 है, मतलब 1 या 2 है, तो मुस्लिम वुमेन राइट्स होगा या शांतारा होगा। तो अगर जो भी मुझे लगा तो मैं इसी पे परस्यू करके अगर कुछ मेजर चेंज ला सकूँ तो मैं करूँगी उसमें, ऐसे लॉज पे। और फाइनल 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे उमंगे होती है, एम्बिशंस होते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट आर यू सैटिस्फाइड विद योर एम्बिशंस? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अभी तक जितने भी आपने एम्बिशंस अचीव किए हैं, आई नो देयर इज पिनाकल टू कम, तो अभी तक कितने सेटिस्फाइड है आप अपने एम्बिशंस से, कि अभी भी कुछ पहाड़ बाकी है? बहुत सारा बाकी है। ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं किया। Yeah, that's what I mean. कुछ नहीं किया। आप is from your point of view, from the point of view of different people. मैं नहीं कहूँगी मैंने ग्रेट वर्क किया है, कुछ भी नहीं किया। No, we wish कि आपने जितना भी किया है, that's wonderful. In future you do even more wonderful. Yes, yes. But what are few sort of ambitions which you would like accomplish in future? कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है। से प्रोफेशन वाइज तो मुझे एक ये जो इश्यूज हैं सोशल, Yes. उस पे तो काम करना ही करना है। नहीं पता हम कितने एफर्ट्स डालेंगे, जो भी डालेंगे हमसे बनेगा वो डालेंगे एफर्ट्स, और उससे अगर 1% 2% सोसाइटी को कुछ फर्क पड़ता है तो ये एक मेजर एम्बिशन रहेगा मेरा। दूसरा, कंट्री के लिए भी कुछ भी करना है, उसको एक ये जो अभी डिवाइड एंड रूल और सब कुछ चल रहा है, तो उसके लिए भी जो भी हम कर पाएं, उसका एक माहौल बनाने के लिए जो माहौल हमको आज प्रेशर कर रहा है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत कर पाएं, तो ये मैं एक करना चाहूँगी दिल से, मतलब ये है मेरा। अंत में मैडम हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका एक पॉजिटिव मैसेज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर द होल वर्ल्ड, व्हाट्स योर पॉजिटिव मैसेज? से वर्ल्ड इज अ फैमिली, तो humankind, humanity should be the first thing everybody should follow. Great. Without any discriminations. So the world should be at peace. ठीक है, छोटा मोटा चलता रहेगा, मैनेज करते रहेंगे कन्फ्लिक्ट्स, पर ये जो बड़ा बड़ा लेवल पे हो रहा है, जो बैलेंस है, ये है, वो सारा बंद हो जाए, वो एक मैसेज मिला है, मतलब इस तरीके से रहें कि ह्यूमैनिटी बेस्ड वर्ल्ड हो बस। ह्यूमैनिटी बेस्ड। एक लास्ट क्वेश्चन अराइज हुआ मेरे माइंड में, अभी रिसेंटली पीपल और द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड 8th March इंटरनेशनल वुमेन्स डे, सो व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन? हमने तो निकुंज भाई जानते ही हैं, जानना चाहते हैं। हमने एक इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन वुमेन्स राइट्स पे, मतलब उलट तपास, जो गुजराती में वर्ड है उलट तपास, वुमेन्स डे उलट, मतलब वुमेन्स को हमेशा घर पे जाती है, कहाँ थी, क्या कर रही थी, अकाउंटेबल, मेकिंग हर अकाउंटेबल, ठीक है, उसका हमेशा एक एग्जामिनेशन होता है, राइट फ्रॉम सुबह उठती है रात को सोती है, फैमिली में होता है, ऑफिस में होता है, रात को घर पे आती है, होता है, तो व्हाई वुमेन, व्हाई शी इज ऑलवेज आंसरेबल, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं जी पाती उसकी लाइफ इंडिपेंडेंट, व्हाई शी हैज टू आंसर। ट्रू, मेल्स नहीं देते हैं, सुबह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सी शेयर करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक आपको आंसर देना एंड फोर्स किया जाए, तो उसी पे हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें मैं एक पैनलिस्ट थी, एंड इट वाज नॉट अ लेक्चर वाला था, इट वाज जस्ट चर्चा जो बोलते हैं वो था, एंड इट वाज एक्सीलेंट प्रोग्राम फादर, सो बहुत अच्छा रहा उसमें, काफ़ी उसका फीडबैक तो अभी मुझे नहीं पता है बिकॉज इट्स जस्ट 2 days, सो फिर मुझे बहुत उस दिन अच्छा लगा कि हम कुछ कर रहे हैं उस दिन। Great. With this message, I'll take a leave, Okay. and we Thank would you. like to wrap up this program.
Viewers, we were in conversation with one of the finest and one of the honest and renowned advocate Shaheen Hussain Said from the city of Surat in Gujarat. Thank you very Thank you much. for joining for our program. Thank you very Thank much you and so I would much. love कि ऐसे programs हो जो हम कुछ सोसाइटी के लिए कर पाएं Great. आगे भी। तो प्लीज़ हम लोग अगर कहीं पर भी काम आ जाए सोसाइटी के कंट्री के लिए तो ये थोड़ा सा हमको मौका ज़रूर दीजिएगा। Definitely. ठीक है? All right. Thank Take you care. very much. Thank you.